ओके नाउ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये टॉपिक है। Let me catch it in this. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि those who are in need of loans बट डज नॉट हैव कोलेट्रल। ओके, ऐसे भी लोग हैं जो गरीबी है भारत देश में गरीबी है, तो बहुत सारे लोग हैं, हमने डिस्कस किया था। तो अब जिनके पास कोलेट्रल नहीं है उनका क्या, व्हाट दे कैन डू, whosoever not have collateral, तो उनको सस्ता पैसा तो मिलना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल इफ 70 to 80% people are in need of money, those who don't have collateral, जिनके पास collateral नहीं है, okay, and they wants loan from formal sector, then what? तो अभी तक जो भी whatever we discuss, उनसे पता तो लग गया है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से जो है वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पुअर सबसे ज़्यादा है और उनको जिनके पास कोलेट्रल नहीं है तो उनका क्या है कि उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ द सॉल्यूशन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स व्हाट? In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. Yes, बैंक जो है वो हर एरिया में, हर विलेज में ब्रांच ओपन नहीं कर सकता। Okay, because of many limitations, each and every particular bank cannot start new branch in that rural area. Staff चाहिए, branch का management करने वाले लोग चाहिए, okay, resources चाहिए. By keeping that in view, in each and every particular village and each individual whosoever in need of to reach that person is not possible every time. Okay. So banks are not present everywhere in rural India. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. Informal sources में होता है क्या? They are charging 5% per month rate of interest. Why? And why poor people are ready to pay? Or why poor people are ready to take loan from high rate of interest? Because informal sector credit does not require any collateral. उनको कोई collateral नहीं चाहिए। समझ में आया? कोई कोलेट्रल नहीं देता है, दैट इज वाई दे आर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? और यहां पे बैंक को अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, दैट इज वाई दे आर इन नीड ऑफ कोलेट्रल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से पूरा इकोनॉमी में एक सिचुएशन चल रहा है, तो कोलेट्रल होना बहुत जरूरी है। As we saw for mega, bank loans require proper documents and collateral. Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loans. Yes. अगर MCQ अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि डैश prevents the poor from getting loan from formal sector, dash prevents
the poor to get loan from formal sector. So that is absence of collateral. Is that clear? Absence of collateral. Informal lenders such as money lenders, on the other hand, know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repaying. यहाँ से हम दूसरा पेज लेंगे. नेक्स्ट, repaying their earlier loans. अगली लोन रिपे किए बिना वो नई लोन लेते हैं. समझ में आया? ऐसी कंडीशन में वो लोग जो है वो उनको पैसा देते हैं. इज दैट क्लियर? एंड ये गरीब लोग जो है ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं. समझ में आया? गरीब लोगों को क्या होता है कि ये हमारा भगवान है. वाई? बिकॉज he is giving us the loan without repaying earlier loan. पहली लोन हमने पे नहीं की, फिर भी ये कितना भला आदमी है कि हमें दूसरी लोन जो है वो देता है. लेकिन उनको पता नहीं कि they are going to caught in that trap. However, the money lenders charge very high rates of interest, keep no records of the transactions and harass the poor borrowers. यार उसके बाद क्या करते हैं वो जो है वो मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को, डिटेल्स को, और फिर उस दिन आपने पैसा इतना ही दिया था, उतना दिया था, ये करके ट्रांजेक्शन जो है वो रॉन्ग दिखा के उनको एक्सपर्ट ज्यादा करते हैं. इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर. तो आज के अब ये दोनों के बीच का रास्ता क्या है? वी आर डिस्कसिंग सॉल्यूशन हियर. समझ में आया? द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर. आइडिया क्या है? ऑर्गेनाइज रूरल पुअर. रूरल पुअर को इकट्ठा करो, इन पर्टिकुलर विमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पुल कलेक्ट देयर सेविंग्स. अब से फॉर एग्जांपल 100 हाउस होल्ड्स है, having the same financial condition, having the same economic condition. ओके, तो ये 100 हाउस होल्ड जो है वो कुल मिला के से फॉर एग्जाम्पल ईच वन फ्रॉम द फैमिली, तो 100 मेंबर्स. These 100 members together decide to pool the savings of each one. सभी जो भी काम करते हैं सबका वो ऐसे इकोनॉमिक सेम इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, कहाँ पे कौन क्या काम करता है, किस तरह से उसका गुजारा चलता है, ये है वो है, कितने फैमिली मेंबर्स, ईच एंड एवरी वन दे नो अबाउट ईच एंड एवरी वन. सो दैट इज वाई ये 100 मेंबर्स मिलके जो है वो कोई एक डिसाइड करेगा यू आर द लीडर. ओके, और आपको जो है वो सबके सेविंग्स जो है वो हर रोज के जो भी सेविंग्स है वो आपको कलेक्ट करने हैं, हर रोज के या महीने के. ओके, तो महीने के अगर 1000 है, 1000 रुपीज इंटू 100 मेंबर्स, तो कितना हुआ? 1 लाख रुपया. ओके, तो 1 लाख रुपया फर्स्ट मंथ कलेक्ट हुआ. अब ये 100 मेंबर में से जिनको भी 10,000 का लोन चाहिए, 20,000 का लोन चाहिए, तो वो बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम आपको 20,000 या 10,000 का ही लोन मिलेगा. ओके, इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा. तो से फॉर एग्जांपल कि 10 मेंबर है, 10 मेंबर को 10,000 का लोन पहले महीने चाहिए, तो 10 मेंबर को मिल जाएगा. 10 मेंबर्स दोज हु आर अर्जेंट इन नीड ऑफ मनी, तो वो सब मिल के बोलेंगे कि हाँ भाई इनको पैसा दे दो, तो 10,000 का लोन जो मिल जाएगा. ओके, तो ऐसे 10 लोगों को मिल गया. उसके बाद ये 10 मेंबर्स जो है जिन्होंने 10,000 लिया है, उनके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे? एज पर बैंक रेट. बैंक जितना चार्ज करती है उतना, पूरे साल का 14%. ओके, तो 14%, तो पर मंथ कितना हुआ?
14% पर ईयर, पर मंथ 1.25% हुआ, 1.25 और 1.30 प्रोबेबली। ओके, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको जो है वो लोन मिलेगा। $1.25 और 1.30। ओके, तो 10,000 के ऊपर तो कितना कम हो गया, समझ में आया? तो लाइकवाइज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs। समझ में आया? A typical SHGs has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. Saving per member varies from rupees 25 to 100 or more, depending on the ability of the people to save. Members can take small loans from the group itself to meet their needs, and the group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lenders charges. मनी लेंडर्स उनका एक्सपेक्टेशन करता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। After a year or two, if the member is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. फिर वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं कि देखो हम जो है हमारा दिस इज व्हाट अवर ट्रैक रिकॉर्ड, ये पूरा हमारा पास मेंबर जो है, मेंबर के पास इतना पैसा है, ये सब पैसा मिलके इतना हुआ है, मीन्स 2, 4, 3 लाख 5 लाख हो जाता है। ओके, वो बोले कि 3 साल से इतना रेगुलर चल रहा है, दीज आर दी नंबर ऑफ members and we all are regularly working and this is what our objective। तो फिर बैंक जो है विदाउट कोलेट्रल उनका पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के उनका पैसा लेके उनके अकाउंट्स ओपन करती है, जिससे क्या है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में से पैसा गया फॉर्मल सेक्टर में। समझ में आया? तो ऐसे व्हाइट का इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हो गया। जैसे बैंक में पैसा आता है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, व्हाइट का इकोनॉमी डेवलप होता है, फॉर्मल सेक्टर डेवलप होता है। जितना फॉर्मल सेक्टर डेवलप होता है उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgage land, to meeting working capital needs. Say for example, buying seeds, fertilizers, raw material like bamboo and cloth, for housing material, for acquiring assets like sewing machine, handlooms, cattle, etc. Most of the important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group members. The group decides as regards the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule, etc. Also, it is the group which is responsible for the repayment of the loan. हाँ, यस, ये जो ग्रुप जो है वो repayment of the loan, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये repayment अगर नहीं किया तो, so all that members will have responsibility to take out that money from the particular member who is not repaying the loan, because each and every, मैंने पहले बोला कि each and every particular know each and everyone from very particular many years and they are belongs to the one particular neighborhood, and that is why उनसे पैसा लेना जो है वो उनके लिए easy होता है. Also it is the group which is responsible for repayment of the loan. Any case of non repayment of loan by one or any one member is followed up seriously by the members in the sorry. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in SHGs, even though they have no collateral as such. Without collateral, फिर बैंक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हिसाब से, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उनको भी लोन बैंक देती है, क्योंकि ये मेंबर जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका क्रेडिट अच्छा है. Thus, the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable interest rate. Moreover, SHGs are the building blocks of organization of the rural poor.
Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. मीन्स कि उनको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहने से बहुत सारे विमेंस को भी बेनिफिट मिलते हैं. विमेंस विल ऑल्सो केम टू नो अबाउट व्हाट आर द लॉज एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्टिकुलर सिचुएशंस. इकोनॉमिक के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो है, हेल्थ के रिलेटेड उनके सोशल इश्यूज जो भी है, उन सब में उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उन सब में उनको हेल्प मिलता है. That makes the people to be serious about in self help group. वो बोलेंगे कि इतना सारा बेनिफिट मिलता है, then why don't we be in in self help group? Okay. अब इस चैप्टर का ये लास्ट पेज है. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये ग्रामीण बैंक का. बांग्लादेश में अभी जो तनाव की स्थिति है, ओके, बाय कीपिंग दिस इन व्यू, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. अब ये जो भी बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट को जो भी डाउट है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ये मैं बहुत सारी अच्छी डिटेल्स इसके बारे में आपको दूंगा. मैंने ये प्रोफेसर जो है मोहम्मद यूनुस, अभी वो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के. अभी उनके तनाव की स्थिति जो है वो बड़ी है, ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तनाव वहाँ पे. तो मोहम्मद यूनुस सर को प्राइम मिनिस्टर, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट दिए. तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ही वॉज द नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस. ये देखो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस. गूगल पे उनका फोटो देख लेना, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. अब उनको नोबेल प्राइज भी मिला है. नोबेल प्राइज प्रोबेबली इन द ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 2007-8 में शायद मिला है. 2007-8 में कुछ मिला है, 2006-7 में प्रोबेबली मिला है. वो भी आप देख लेना. आई एम सॉरी टू से अबाउट दिस. Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. Okay, ये जो है ये पूरे वर्ल्ड में जो है इसका माइक्रो फाइनेंस का तहलका मच गया था. माइक्रो फाइनेंस मीन्स कि जिसको बहुत ही कम पैसों की ज़रूरत हो, कि हर रोज़ 500 रुपये की ज़रूरत हो, तो 500 रुपये जो मिलता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस. तो 500 रुपया देते हैं अब जिनके पास कोलेटरल ही नहीं है. सो इनको जब नोबेल प्राइज़ मिला मोहम्मद यूनुस सर को, तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा था CNBC TV 18 में, एंड आई वॉज इवन अमेज्ड कि उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इतने सालों से आप चला रहे हो, ये देखो 1970s से है, तो 1970s से आप चला रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को आपने पैसा दिया. तो सबसे पहला क्वेश्चन वो प्रेस रिपोर्टर का कौन सा था, न्यूज़ रिपोर्टर का, कि कितने डिफॉल्टर्स है आपकी बैंक में. यू विल बी अमेज्ड. उन्होंने आंसर दिया कि नॉट इवन अ सिंगल डिफॉल्टर. एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने पैसा रीपे ना किया हो विदाउट कोलेटरल. ऐसे सिंपली 500 रुपया हम देते हैं और उनको सिखाते हैं कि भाई सब्जी खरीदो होलसेल के प्राइस पे, फिर बेचने के लिए नीचे बैठ जाओ. ओके, पूरे शाम तक आप जो भी बेचते हो वो बेचने के बाद यहाँ पे आना. फिर जैसे वो आता है बोल देगा कि तेरे पास कितने पैसे हैं, वो बोलेगा कि 600 रुपया. हाँ, तो 100 रुपया प्रॉफिट हुआ. हाँ, यस, ओके, तो 100 रुपया जो है उसमें से 20 रुपया 30 रुपया हमें वापस दो. ओके, इस तरह से 580 रुपया तुम रखो. ओके, इसमें से जो भी आपका खाने का खर्चा है 30-40 रुपया वो एक तरफ रखो, और बाकी का दूसरा पैसा जो है वो दूसरे दिन जाके नई सब्जी परचेस करना. लाइकवाइज वो सबको एजुकेट करते गए 1970 से लेके 2018 तक. यू जस्ट इमेजिन. यहाँ पे देखो
डेटा दिया है, ग्रामीण बैंक इन 2018 had over 9 million members in about 81,600 villages spread across Bangladesh, and almost all of the borrowers are women and belong to poorest sections of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. यहाँ पे चीज क्या है कि एक वो कहते हैं ना एथिक्स, कि जो भी पैसा बोरो करता है उनका एथिक्स, उनकी नीति वापिस देने का जो है जरिया, क्योंकि वापिस दोगे तो सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा। ओके, बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर मैं केस स्टडी डालने वाला हूं, देखते रहना। If credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. Yes, देखो यहाँ पे, हाँ यस यहाँ पे लिखा है recipient of 2006 Nobel Prize for Peace. Summing up, end of the chapter. In this chapter we have looked at the modern forms of money and how they are linked with the banking system. On one side are the depositors who keep their money in the banks, and on the other side are borrowers who take loans from these banks. Economic activities require loans or credit. Credit, as we saw, can have a positive impact or in certain situations make the borrower worse off. तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट क्रेडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फैक्टर. इट डिपेंड्स ऑन द बोरोवर हाउ दे आर यूजिंग द क्रेडिट. इफ दे आर यूजिंग दैट इन अ राइट एंड प्रॉपर वे, देन दिस पर्टिकुलर क्रेडिट विल गिव, and in return they will economically prosper. But if they are not going to use it in a right and proper way, then the credit itself is worse off for them. Okay, a credit is available from a variety of sources. These can be either formal or informal, so they should have to take the loan from the formal sector only. Terms of credit vary substantially between formal and informal lenders. At present, it is the richer households who receive credit from formal sources, whereas the poor have to depend on the informal sources because of lack of collateral. It is essential that the total formal sector credit increases so that dependence on the more expensive informal credit becomes less. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from banks, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development. See कि बैंक जो है 2000, in the year 2000, number of people have their own accounts in bank. तो वो टोटल जो है मार्केट शेयर जो था वो कि कितने टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोगों का, तो इट वाज जस्ट 45% पीपल होल्ड देयर हैव देयर बैंक अकाउंट. तो अगर 45% लोगों के पास ही इन द ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ, साल 2000 में अगर ये 45% के पास ही अगर बैंक अकाउंट है, तो फिर ये फॉर्मल सेक्टर कैसे डेवलप होगा? बैंक से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा, कैश के थ्रू ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो फिर तो वो ब्लैक का इकोनॉमी, इनफॉर्मल सेक्टर ही डेवलप होगा. दैट इज वाई सरकार ने ये जो है वो नंबर ऑफ लोगों का ये जनधन योजना वगैरह करके ये सब जो है वो डेवलप किया है. और आज जो है इतने कितने सारे बैंक है, ईयर 2000 में जितने भी बैंक्स थे उससे बहुत ज़्यादा बैंक जो है इन कॉमर्शियल बैंक, देन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी बहुत सारी आ गई है मार्केट में. इसके ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं स्प्रेड करने वाला हूँ. कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है, तो प्राइवेट सेक्टर कितने सारे बैंक्स हैं. तो यू जस्ट इमेजिन. देन आपने तीसरा तो मैं भी भूल गया, कोऑपरेटिव, यस कोऑपरेटिव बैंक्स. यू जस्ट इमेजिन. ओके, तो इतने सारे बैंक जो है वो नंबर ऑफ बैंक जितने इंक्रीज हुआ है, आज जो है वैसा एक रेशियो है कि भाई 85% प्लस के बैंक अकाउंट है. ओके, तो इतना क्या है कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो इतना डेवलप होगा, और जितना फॉर्मल सेक्टर डेवलप होगा उतना वाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होगा. तो ये था मनी एंड क्रेडिट का थर्ड चैप्टर. ओके, अपने मार्क्स इंक्रीज करना. विश यू ऑल द बेस्ट. मैं चाहता हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखो, अच्छी तरह से पेपर लिखना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना. लव यू ऑल.
एंड कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स है वगैरह लिखना, तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।